तो देखो अब अपने को पढ़ना है मोड्स ऑफ लेज़र बीम। मोड्स ऑफ लेज़र बीम पढ़ना है अपने को। मोड्स ऑफ लेज़र बीम कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, लॉन्गिट्यूडल होती है, ट्रांसवर्सल होती है। देखो हो क्या रहा है लेज़र में, व्हाट इज हैपनिंग इन द लेज़र, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लेज़र. So we are having two mirrors, M1 and M2, and between these two mirrors there is a glass tube, and inside this glass tube there is active media. Okay, and the whole process, whole this setup is called resonance cavity. Now what is the active media? Active media is host plus active center. Okay, means like depend on the laser conditioning, there will be some host, and inside that host there will be some active centers, and active centers will be responsible for the purpose of lasing. And since we know that lasers are also waves, so for the standing waves lambda equal to 12 by m, because we know this from our OOP, open organ pipe, and closed organ pipe, we know this. So let's go directly for the topic. Now longitudinal mode. Longitudinal mode is for standing wave pattern inside cavity, this optical cavity, resonance cavity, along cavity length. So lambda m is the longitudinal mode. So suppose there is first mode, then what will be 2nl by 1. So lambda 1 equal to 2nl, and we know that mu equal to c by lambda. So mu equal to mc by 2nl. Getting my point or not? It is just put this, and delta mu equal to c upon 2nl. Very important. Delta mu equal to c upon 2nl. So the difference between two successive frequency, delta mu is the difference between two successive frequency, and we know this mu equal to c by lambda. So delta mu equal to c upon lambda square. We are not taking the minus sign here. So delta lambda equal to lambda square delta mu by c, and delta mu equal to c upon 2nl. So delta lambda equal to lambda square upon 2nl. This is also very important. Now let's move forward. The number of modes that would be present in the cavity is given by n equal to delta lambda by delta lambda, del lambda by delta lambda. We know delta lambda is difference of the frequency wavelength, and del lambda equal to line width of the emission. Getting my point? So the number of modes that would be present in the cavity is given by del lambda by delta lambda. Now let's go for transverse mode. Now transverse mode, the laser mode governed by the cross sectional dimension of the optical cavity are known as ट्रांसवर्स मोड और टेम मोड्स. तो ये टेम हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो उसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी, और यहाँ भी है ये. सो टेम मोड्स आर बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी नोन एज, जो उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? टेम मोड्स. इसकी एक्सैक्ट डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं EMT में. नाउ वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ लेजर्स. हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है ना अभी तक, चलो अपन पढ़ लेते हैं. रूबी लेज़र. रूबी लेज़र कब डिस्कवर? 1960 में रूबी लेज़र आया था फर्स्ट में, और मेमन ने डिस्कवर किया था, जो USA का था. और इसमें रूबी लेज़र में होता क्या है? एक क्रिस्टल होता है, किसका होता है? एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का, है ना, Al2O3 का. और इसके अंदर होते हैं इम्प्योरिटी, किसकी? क्रोमियम प्लस 3 आयंस की. कितना होता है? 0.05% वर्ड परसेंट. मतलब अगर 1000 ग्राम जो अपना एल्यूमिनियम, 1 किलो एल्यूमिनियम है, कितना होगा? 50 ग्राम ही हो जाएगा. Cr plus 3 ions in ruby crystal. So what is happening here? Cr plus 3 ion, chromium plus 3 ion are doped with aluminum oxide ion, and aluminum oxide is active medium. So chromium plus 3 ions are the active centers, and Al2O3 is the host matrix. So we know that Al2O3, the ruby crystal, is hosting the Cr plus 3 ions. So Cr plus 3 ion will be the active centers. And it is a type of solid state laser. Ruby laser is solid state laser, and it is 3-level laser system, and it gives us the pulsed laser or spiking laser ऐसे. और अगर इसको ऐसा कि इंटेंसिटी स्पाइक होती जाएगी बीच बीच में, है ना, ऐसा. एंड द वेवलेंथ फॉर रूबी लेजर इज 6943 एमस्ट्रॉम. कितना है? 6943 एमस्ट्रॉम है रूबी लेजर की वेवलेंथ. M1 M2 है ना, ये फ्लैश लैम्प है, यहाँ ग्लास ट्यूब होती है. ये रूबी क्रिस्टल इनसाइड ये है ना, Al2O3 का रूबी क्रिस्टल है अपने पास. इसके अंदर क्या है? Cr प्लस 3 डोप्ड कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा है. अब ये जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जो अपने एक पर डिस्कस की, तो यहाँ से अपने को आउटपुट में मिल जाएगा क्रॉस सेक्शन में. अब देखो इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है.
अब अपने को एनर्जी बैंड ड्रॉ करने किसके सी आर प्लस सी आयन के ड्रॉ करने पड़ेंगे। किसके करेंगे सी आर प्लस सी आयन के क्या ड्रॉ करेंगे एनर्जी बैंड्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो ग्राउंड स्टेट है और यहाँ E1 और E2 स्टेट है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन करके स्टिमुलेटर एब्जॉर्प्शन करके वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं यहाँ 4000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, या एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। इनको बोलते हैं पंपिंग फोटोन्स। क्या बोलते हैं इनको, पंपिंग फोटोन्स। अब देखो क्या होगा, ये अगर सीधे ग्राउंड स्टेट में आ जाते तो अपने पास लेज़र नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने एक मेटा स्टेबल जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से भी वापस यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे वापस यहाँ से आ रहे हैं। ये दोनों कौन से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिस्टर है, इनमें किसी भी रेडिएशन का इमिशन नहीं होता इन दोनों ट्रांजिशन में। तो लेज़र कब मिलेगी, जब मेटा स्टेबल स्टेट जो कि 10⁻³ सेकंड तक रहती है किसके कंपैरिजन में, इसके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं था, पर यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि जितने टाइम में नीचे जाएगा उससे पहले ही यहाँ से बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल, सो दे विल इमिट लेज़र ट्रांजिशन। एंड लेमडा अपने को मिलेगा, कितना मिलेगा, रेड लाइट का 6943 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना है रूबी लेज़र में कितना मिलता है अपने को, 6943 एंगस्ट्रॉम का मिलता है। नाउ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस आर ट्रांजिशंस इन दिस ट्रांजिशन एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर टू द लेटिस। नाउ अब अपन देखते हैं नायोडियम ये लेज़र। नायोडियम ये लेज़र क्या होता है, नियोडीनियम Nd+3 होता है, और ये यट्रियम एल्यूमिनियम और गार्नेट Y3Al5O12। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मेरे को PhD के इंटरव्यू में पूछा था यार, उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं था। Y3Al यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट Y3Al5O12 नियोडीनियम Nd+3। नाउ हो क्या रहा है यहाँ पे, ये डोप्ड कर रहा है, किस तरह डोप कर रहा है, 0.7 में एल्यूमिनियम और गार्नेट के साथ में, टू रिप्लेस Y+3 आयंस। तो यट्रियम के जो आयंस है उसको रिप्लेस करके इम्प्योरिटी मिला लेंगे किसकी, Nd+3 की। तो नायोडीनियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव सेंटर लेके आएगा नायोडीनियम, ये देखो आई गया। ठीक है, और होस्ट कौन है अपने पास, ये Y+3 आयंस होस्ट है अपने पास। और ये भी क्या है, रूबी लेज़र की तरह क्या है, सॉलिड स्टेट लेज़र है। ये याद रखना है कि इसमें जो अपने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, आईआर रीजन में मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पूरा चार्ज है ना, इसको तो पूरा मतलब नींद में भी याद होना चाहिए तुमको। सो जो लेमडा है वो ये लेज़र की यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट लेज़र नायोडीनियम+3 वाले, इसकी जो अपने को लेज़र मिलती है वो मिलती है इंफ्रारेड रीजन में। सॉरी, कौन सी लेज़र मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में। और कितना है इसका, 10,600 एंगस्ट्रॉम और 1.06 माइक्रोमीटर। 1 सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। CO2 लेज़र कैसा लेज़र है, गैस लेज़र है। ठीक है, और ये 4 लेवल लेज़र है, ये भी कितना होता है इसका, इन्फ्रारेड में होता है। और एक इन्फ्रारेड किस में था, बताओ मेरे को, इन्फ्रारेड किस में था, ये नायोडीनियम वाले में भी इन्फ्रारेड था, और CO2 में भी क्या है, इन्फ्रारेड है। और ये गैस लेज़र है, CO2 दिख रहा है अपने को, CO2 गैस लेज़र है। और CO2 नाइट्रोजन और हीलियम 1 4 5 145, CO2 N2H2 कितना है, 145 है। एक्टिव सेंटर्स क्या है, CO2 के मॉलिक्यूल है। और ये कैसा है, कंटिन्यूस मोड लेज़र है, ग्राउंड स्टेट है, वो फिर नाइट्रोजन है, पोजिशन करके इधर जाएगा CO2 में। वो सबको कौन करेगा, CO2 ही करेगा, क्योंकि वही है एक्टिव सेंटर। और यहाँ पे E1 E2 E3 E4 और E5 इमिट करके रेडिएशन यहाँ आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। तो इमिटेस्ट मतलब ये तो रेडिएशन इमिट कर रही है 10.6 का और 9.6 माइक्रोमीटर, जो कि किस में लाई करते हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। और कोलिजन करके वापस ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। चलो है ना, अब देखो अपने को थोड़ा क्वेश्चन करने हो, क्वेश्चन अपन खत्म कर लेते हैं। In an ESR electron spin resonator, frequency for a free electron is 9000 megahertz. Then the magnetic field at which the ESR spectrometer is working will be given by G equal to, ये तो given है अपने पास। तो अपने को एनर्जी क्या होती है, G म्यू भी होती है,
अपने को बी निकालना है, निकाल लो। एच का वैल्यू रख दो, म्यू का वैल्यू अपने को गिवन है, और ये म्यू भी दिया है और जी भी दिया है, रख के थोड़ा सोल्व करो तो अपने पास 1/3 10⁻⁻1 के समथिंग अपने को मिल जाएगा आंसर। लास्ट लेजिंग ट्रांजिशन इन हीलियम नियोन लेजर इज रेड लाइट ओकोस इन कहाँ जा रहा है 3s से 2p। देखो अब ये वहाँ अपने डिस्कस नहीं किया था, क्वेश्चन में पता चला अपने को कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। सो इट इज़ 4 लेवल लेजर एंड विल गो फ्रॉम 3s to 2p एंड लेजर लाइट इमिशन इज 632.8 नैनोमीटर। कितना होता है 638.2, ये पूछा हुआ है ना कि रेड लाइट कितने वेवलेंथ की मिलती है हीलियम नियोन में, 632.8 नैनोमीटर की मिलती है। नाउ ए 3 लेवल लेजर सिस्टम एटम्स N1 N2 और N3 अपने पास और ऐसा दिया है। तो बताओ, देखो यहाँ से आएगा तो कोई लेजर लाइट का एमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है अनस्टेबल है, तो मेटा स्टेबल ये वाली है, तो यहाँ पे N2 में ज़्यादा होना चाहिए किससे N1 से, मीन्स एमिशन कहाँ से होगा E2 से, E1 में होगा तो अपने को लेजर मिलेगी। द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम ए वाट एप्रोक्सीमेट, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स, ऐसे निकलते हैं E1/E2 से निकल जाए नंबर ऑफ फोटोन्स, ये होता है ना E बराबर NH म्यू, तो N बराबर E/H म्यू। अब यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा देखो, एक तो अपने को दिया है, कौन सा दिया है 1 वाट, तो टोटल कितना है 1 वाट, और E2 निकाल लो अपने SC/λ से और दोनों को डिवाइड कर दो तो अपने पास आ जाएंगे फोटोन। द आउटपुट ऑफ ए लेजर पल्स विथ 30 मिलीसेकंड एवरेज आउटपुट पावर 0.6 वाट पर पल्स। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट इज 640 नैनोमीटर, हाउ मेनी फोटोन डज ईच पल्स कंटेन, N इक्वल टू E पल्स बाई E फोटोन। तो देखो अपने पास पल्स कितनी है, E पल्स कितनी है, पल्स कितनी है, एनर्जी कितनी है, पावर इनटू टाइम है अपने पास, पावर कितनी है ये और टाइम कितना है 30 मिलीसेकंड है ना, तो ये पल्स होगी अपने पास। अब फोटोन कितने हैं अपने पास, फोटोन की एनर्जी कितनी है SC/λ निकालो, N क्या निकलेगा वही, टोटल कितनी है अपने पास पल्स की और बड़े फोटोन की, टोटल कितनी पल्स की कितनी है, ये दी हुई ना पल्स की 0.6 वाट पर मीटर सेकंड, कहाँ गया ये 0.6 वाट पर, वाट को अपने पावर बदल लिया पल्स की आ गई, और अपनी जो वेवलेंथ है उसके आंसर में कितनी है वही E = SC/λ से, ये इतनी है अपने पास, डिवाइड कर दो आंसर अपने पास आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, बस याद रखना कि N होता है ना E बराबर NH म्यू होता है, ये N बराबर E/H म्यू हो जाएगा यहाँ से, और ये E क्या है अपने पास जो टोटल है वो, और H म्यू क्या है एक फोटोन का। नाउ कंसीडर एनर्जी लेवल्स, ऐसा दिया है NM और BNM क्या होता है अपने को पता है, ये क्या है बताओ जरा, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, 8/h में क्या क्यूब और N/(λ)³ ए 2 लेवल सिस्टम ऑफ एन एटम्स इज नेगेटिव टेम्परेचर T। अब नेगेटिव टेम्परेचर है तो मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, तो कितना होगा N2 > N1। ए गैस लेजर एंड मिरर्स, वही अपना जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, लाइन्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू वेरियस वोल्टेज इंटरफेरेंस बिटवीन द 2 mirrors. If the separation of mirrors and the wavelength of lasers are 30 cm and 6000 mm respectively, the separation between two neighboring, अब अपनों ने पढ़ा था अभी डेल्टा लैम्डा 8 को λ²/2d, सेपरेशन बिटवीन द टू नेबरिंग लाइन्स इज अप्रोक्सीमेटली, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ा था मोड्स में, ये डेल्टा लैम्डा = λ²/2nl, और nl क्या है वही विड्थ है उसकी, तो d हो जाएगी यहाँ पे λ²/2nl। सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन अपना, ये रहा, ठीक है। सो लैम्डा रख दो और ये 2nl था, 2l हो जाएगा यहाँ पे, 2l हो गया और रख दिया, आंसर आ गया। कंसीडर सोर्स विच इमिट्स रेडियस 500 नैनोमीटर, द लाइन ऑफ द LC कोहेरेंस लेंथ पूछ रहा है। सो कोहेरेंस लेंथ क्या होती है λ²/λ रख दो, आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, CO2 का थोड़ा डिफरेंट है, ये अपने को थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा। जो CO2 लेजर था उसमें कितनी थी 9.6 माइक्रोमीटर और 10.6 माइक्रोमीटर, यही था पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसके देखो इसने पूछा, देखो कितना डीपली जाके पूछा, एनर्जी लेवल कौन से हैं 001 से 020, 001 से 020, फिर 001 से 100, 001 से 020 और 001 से 100। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, इसका रिवाइज करते रहना। व्हाट इज टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ ऑफ मर्करी वेपर इमिटिंग ग्रीन लाइन वेवलेंथ है वही λ²/2λ और C/2 μ, रख दो, आंसर है अपना कोहेरेंस लेंथ λ²/Δλ।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना हीलियम नियॉन लेज़र के लिए। अब देखो सब कुछ पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं करो, तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होगी, मान लो वहाँ पे आ गया तो। सो एनर्जी डायग्राम फॉर्म हीलियम और नियॉन लेज़र किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? रसेल सैंडर्स रिप्रेजेंट करता है। और नोटेशन कौन से होते हैं? 5 नोटेशंस होते हैं हीलियम नियॉन में। तो कोहेरेंस लेंथ ऑफ लेजर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ओनली प्लेस इन नियॉन ओनली है ना, ओनली नियॉन में हो रहे थे बताइए। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लेते हैं थोड़ी सी अपन। देखो क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, म्यू बार इक्वल टू ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ दिया है अपने को, 2 दिए, 3 रमन लाइन्स दिए है ना। द रमन शिफ्ट इज 4447 एंगस्ट्रॉम। तो अपने क्या दिया है, रमन शिफ्ट दे दी, मतलब डेल्टा लैम्डा अपने पास है, तो 1/λ तो कितना होना चाहिए, डेल्टा लैम्डा होना चाहिए अपने पास। समझ में आ रही बात? कर दो इसको, रख दो, आंसर आ गया अपने पास सीधे। Consider nuclear F-19 when it is placed in a magnetic field of 1.0 resonance frequency units. Emitted signal observed and nucleus and lemma spectrum given by. वही सेम क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम रोटेशनल रमन। सो वाइब्रेशनल रमन डेल्टा म्यू इक्वल टू +-1 एंड रोटेशनल रमन 0 +-1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज हो गए फिर। वाइब्रेशन नंबर में डेल्टा इक्वल टू +-1 और रोटेशनल नंबर में डेल्टा इक्वल टू 0 +-2। एक्सेप्ट नंबर के दिए, बेंजीन शोज फर्स्ट रमन शिफ्ट दे दिया अपने को। देखो रमन शिफ्ट जो है ना वो क्या एनर्जी डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो रमन शिफ्ट जो है वो बेसिकली लेजर से तो इंडिफरेंट होगा, क्योंकि रमन शिफ्ट तो एनर्जी डिफरेंस है, तो वही होगा जितना दिया था। Which of the following molecules give no infrared microwave but rotational Raman spectra? तो रोटेशनल रमन देता क्यों है, कौन देता है रोटेशनल रमन? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है ना, रिजल्टेंट डाइपोल होता है, वो देते हैं रोटेशनल। जैसे H2O N2O ये क्या देंगे, रोटेशनल दे देंगे। पर जैसे CO2 में क्या है, लीनियर सिमेट्री है, C6H में क्या है, लीनियर सिमेट्री है, और जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है वो क्या देंगे, वो देंगे ही नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, HCl और HCN। HCl क्या है, सिमेट्री वाला है। O2 H2 होमो, वो क्या बोलते हैं इनको, डाइएटॉमिक होमो न्यूक्लियर, ये भी नहीं देगा। CO2 CH4 नहीं देगा, क्या देगा, CO और H2O देगा, ये CO और H2O देगा। कौन सा देगा, प्योर रोटेशनल। फर्स्ट रमन शिफ्ट दे दी अपने को, तो यहाँ से अपन निकालो लेमडा इसका रमन का, और एक्सेप्टेड बाई इतना दे दिया, विल कोरस्पोंड एक्सेप्टेड वेवलेंथ। अब देखो थोड़ा सा क्या है कि टिपिकल इनको छोड़ना देना चाहिए फर्स्ट टाइम में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। सो डेल्टा में कैसे निकालोगे, 1/λ1 + 1/λ2। अब ये CO+2 कार्बन डाइऑक्साइड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑफ द मीटर 4F9, क्योंकि D7 है ना, वही फिर D7 में 7 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या आएगा, 7/2 तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, S। ठीक है, और D के लिए L कितना है अपना, sp_d2। तो J क्या आएगा, सॉरी पहले तो S निकाल, 2s+1 तो कितना आएगा, 2s+1, तो 8 तो अपना S आया है। नहीं इसको सोल्व करना पड़ेगा ना अपने को। यहाँ पे देखो ये भूल गया, सॉरी, 2 1 0 -1 -2, ठीक है। सो ये 2 + 1 + 0 + -1 -2। चलो मैं इसको सोल्व करके बाद में अपलोड कर दूँगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, भूल गया शायद मैं, ध्यान रखना पड़ेगा। वो फिर से ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो टोटल एस कितना होगा, एस कितना होगा, एस तो सही कंप्लीट है अपना, एस तो इतना ही होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों बता रहा है। 7/2 तो होगा एस, तो फिर 2s+1 से कितना आना चाहिए इसका, 2 × 8 आना चाहिए, 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 4F9/2 बता रहा है। 2s+1 = 4, सो s = 3/2 होना चाहिए। और अगर डी, अच्छा सॉरी यार, सॉरी मेरी गलती, मैं ना F ऑर्बिटल बनाया था, जबकि D7 इसका वो है,
तो D7 बनाएंगे ना अपन। डी कितना होता है 5 होता है, 1 2 3 4 और 5, बढ़ दो 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये क्या आएगा 1 0 सॉरी 1 2, अरे यार सॉरी 2 1 0 -1 और -2, थोड़ा सा देखना है ना। तो 2 × 2 4, 2 इंटू ये 1 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2, तो कितना होएगा 1 से 1 4 -2 2, ठीक है। तो एल कितना आ रहा है अपने पास, समीशन ऑफ एम एल कितना आ रहा है अपने पास 2। चलो मैं इसको अलग से ही करूँगा, छोड़ो इसको। हाँ सही आ रहा था वैसे, 2 आ रहा था, मतलब एफ अपना जा रहा है, एफ अपना आंसर मैच कर रहा है। और क्या आ रहा था 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना वहाँ पे डी में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 ही, तो बचे कितने 3/2, 2s+1 करेंगे कितना आएगा 2 × 3/2 + 1 मतलब 4, तो 4 आ गया और एफ आ गया। अब जे बचा, जे इक्वल टू क्या होता है एल प्लस माइनस एस, सो एल प्लस माइनस एल कितना आया था अपना 2, और एस कितना आया था 3/2, तो 4 सोल्व कर लो इसको, 7/2 तो 9/2 ऐसे मतलब आ जाएगा, मतलब वो 2 आएंगे उसमें से बड़ा वाला अपना आंसर आएगा। सोल्व कर रखा है यार पहले, वो भी थोड़ी जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई होगी ये सब। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब देखो द एनर्जी, देखो किस सवाल में उलझ जाते हैं अपन, तो फिर ऐसे ही होता है। अब मेरे को एफ, ये एफ दिख रहा है जबकि क्या था डी था, तो आराम से सोल्व हो जाता है। चलो द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टोक लाइन्स इन रमन स्पेक्ट्रोमेट्री डिपेंड्स ऑन, स्टोक्स में डिपेंड करता है किस पे, वाइब्रेशनल लेवल्स पे डिपेंड करता है ग्राउंड स्टेट के। और इसको मैं अच्छे से करके अपलोड कर दूंगा, है ना, टेंशन मतलब मैं कर ही देता हूँ यार, कहाँ इसमें ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में जबरदस्ती लेट हो रहा है अपन। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अपना ये तो आ ही गया था, कितना आया था अपना 2 आ गया था, एल तो आ गया था 2, एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 3/2, सो जे इक्वल टू 2 + 3/2 से 2 - 3/2, सो 4 × 7/2, और यहाँ कितना आएगा 2 - 3/2 1/2। हाँ तो ये आना चाहिए। अब देखो ग्राउंड स्टेट कौन सी आएगी, एक तो आएगी 4f 7/2, एक आएगा 4f 7/2, 3 आएंगे 4f 7/2 4f 5/2 4f 3/2 और 4f 1/2, ऐसा आएंगे ना, 4 ऑप्शन आएंगे अपने पास। तो क्या होगा जब मल्टीप्लिसिटी सेम है तो लोएस्ट वाला रहेगा 7/2 और 5/2 यहाँ पे, ऐसा होगा। चलो बाद में करके बताता हूँ बाकी क्वेश्चन। बाय बाय।